Good morning, students. This is lecture number 4 of thermal properties of matter. So far we have done thermometry, right? We talked about all the thermometers. We talked about the formula C upon 5 is, F minus 32 upon 9 is, K minus 273.15 upon 5. Thereafter we said that at value minus 40 degree Fahrenheit and degree Celsius scales match. At value plus 574.6 the degree Fahrenheit and Kelvin match. Celsius and Kelvin never match. Right after that, we did that graph. F is 1.8 C plus 32. This is a straight line graph not passing through origin. That means when you want to convert Celsius to Fahrenheit, right, you should add a factor of 32. But when you take temperature difference, that time you should not add 32 because that 32 ka factor gets cancelled. That was about thermometry. The second part of this chapter was expansion of solids. Mind you, so far we have started with expansion of solids only. Now solids have definite shape and definite volume. That means for solids you can define length, area, volume, all three. So we can talk about three types. Lengthwise expansion, area-wise expansion, volume-wise expansion. Linear expansion, areal expansion, cubical expansion. Alpha, beta, gamma. Mind you, you cannot do this in liquids. Liquids cannot have definite length. Liquids cannot have definite area also. Liquids have definite volume only. That means for liquids you can define only gamma, no alpha, no beta. Gases के लिए तो the situation becomes all the more difficult because gases do not have definite volume also, right? When we talk about the volume of the gas, we talk about the free volume available for the gas molecules to move. इसका मतलब ये हुआ कि right now the volume available for the gas molecules moving is this, right? If I open the door, can I see the entire passage also? Because this air will escape out. We will start feeling hot after some time. Right now we are feeling reasonably cold. Reason, everything is packed. That means the effect of AC remains inside this classroom only. Yes or no? But once you open the door, then is a problem. जब भी हम लोग AC चालू करते हैं, windows बंद करते हैं ना, driving करते वक्त भी windows बंद करते हैं because that cooling effect should remain inside the car. We don't want to, cool down the air which is outside the car. Then that is infinity, right? तो आपका compressor ही उड़ जाएगा, AC work ही नहीं करेगा, बराबर? So for liquids we can define gamma. For gases we can define gamma under special conditions, and those special conditions are gamma pressure and gamma volume. Gamma pressure and gamma volume. जब आप प्रेशर फिक्स रखते हो तो आप वॉल्यूम को चेंज होने देते हो, और जब आप वॉल्यूम फिक्स रखते हो तो आप प्रेशर को चेंज होने देते हो. इसका मतलब gases में तो gamma also has to be defined under special conditions, right? Otherwise gases do not have definite shape, not definite volume. So anyways, in the previous class we spoke only about expansion of solids. So a quick recap of the formula. Was alpha coefficient of linear expansion? Yes. Was it change in length per unit original length at 0 degree Celsius per degree rise in temperature? If you have the choice, then theta 0 should be chosen as 0 degree Celsius. Theta 0 की बात कर रहा हूँ बेटा, मैं initial temperature की बात कर रहा हूँ. If that choice is with you, start with 0 degree. If that choice is not with you, then start with room temperature. Yes or no? तो अगर मेरे पास ये choice है तो ये formula मैं ऐसे लिखूंगा, L minus L0 upon L0 times theta minus theta 0. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि नहीं? Final length minus initial length upon initial length times final temperature minus initial temperature. बात तो एक ही है. Using formula 1, are you getting formula 2? Yes. New length is old length times 1 plus alpha delta theta, right? जब मैं हीटिंग करता हूँ, हीटिंग, वो टाइम पे डेल्टा थीटा पॉजिटिव होता है, और जब मैं कूलिंग करता हूँ वो टाइम पे डेल्टा थीटा नेगेटिव होता है. तो यहाँ पे मेरा L का आंसर ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे मेरा L का आंसर कम होगा, which proves that anything expands on heating and anything contracts on cooling. Okay, so anything expands on heating and anything contracts on cooling. Now remembering this set of formulae, you can easily remember these and this.
If you want to talk about area-wise expansion, if you want to talk about area-wise expansion, then you go for this replacement. ऊपर जिधर जिधर भी अल्फा दिख रहा है उधर उधर बीटा लिखो, और ऊपर जिधर जिधर भी लेंथ दिख रहा है उधर उधर एरिया लिखो. That means you will get next pair of formulae, one for beta and one for area. Then जिधर जिधर अल्फा दिख रहा है उधर उधर गामा लिखो, और जिधर जिधर एल दिख रहा है उधर उधर वी लिखो. That means you are talking about volume expansion. मतलब मैंने फॉर्मूला लिखा दो ही, लेकिन एक्सप्लेन 6 किया. नेक्स्ट वन, फ्रॉम दिस डू आई से बीटा इज ट्वाइस अल्फा? यस. फ्रॉम दिस डू आई से गामा इज थ्राइस अल्फा? फ्रॉम दिस कैन आई से अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा का रेशियो 1:2:3. एंड फाइनली when I write the formula is V equal to V01 plus gamma delta theta, 1 plus gamma delta theta. Can I rewrite the same formula as rho 0 is equal to rho times 1 plus gamma delta theta, because density is mass upon volume. Are you getting this? तो ये दोनों स्वाइप होता है, इधर V और इधर V0 था, उसके बदले इधर rho 0 इधर rho होगा, because as temperature increases volume increases and therefore density decreases. Yes or no? Yes. So this is where we stopped in the previous class. In the previous class I remember we were left with discussion of some assignment questions. एक बार just confirm करो, पहले भी ये questions ले लेता हूँ. Pending MCQs for the discussion were assignment number 1 में 16 to 21. 16 to 21 are pending. 22 to 25 मैंने बोला ही नहीं था. And practice paper 1 में इधर एप्पल पड़ा था, इधर अभी डाला है. मेरा क्लासरूम एकदम क्लीन चाहिए. एक मॉस्किटो पापा दिखा ना, मैं तुम लोगों को इधर बिठाऊंगा. मेरा दिमाग हटा हुआ है, हाथ उठेगा खाली, बस याद रखना. कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरे सामने दिखना मत आज प्लीज. प्रैक्टिस पेपर 1 में 1 to 26 was discussed. चेक करो. 27th was on gas expansion. Practice paper 1 में 27th question is on book किधर. मुझे सब रिकॉर्ड नहीं करना तो मेरा हाथ उठ जाएगा. मैं सच्ची बोलता हूँ, मेरा हाथ उठ जाएगा. कितने लोगों के पास बुक नहीं है? क्यों आते हो क्लास में? Get up, idiot, you are talking to your sir. Get up! क्यों आते हैं क्लास में? फिजिक्स का क्लास में, बस फिजिक्स का बुक नहीं है. That means you are ignoring the subject. बैठो. Practice paper 1 check. 1 to 26 were done. Yes. 27 को होल्ड पे रखो और बाजू में लिखो wait for expansion of gas. Wait for expansion of gas. 28 to 30 no 40 है ना. 28 to 40 में आज डिस्कस कर रहा हूँ अब भी, राइट. तो पहले ये पेंडिंग एमसीक्यूज डिस्कस करता हूँ, उसके बाद में आई विल स्टार्ट विथ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन अल्फा. बिकॉज वंस यू नो अल्फा देन बीटा एंड गामा आर वेरी इजी, राइट. तो एक बार मैं अल्फा के सम्स करूंगा ना, बाद में मैं प्रैक्टिस पेपर 2 में से होमवर्क देने वाला हूँ, राइट. एंड देयर यू विल सी क्वेश्चंस ऑन बीटा एंड गामा आल्सो. नो प्रॉब्लम, खाली यही ट्रांजिशन करना है ना. एंड व्हेन आई मीट यू ऑन थर्सडे, द फर्स्ट थिंग व्हिच आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टेक अप द डाउट्स फर्स्ट. थर्सडे देयर इज अ डीसीटी. थर्सडे के डीसीटी में मेनली आई विल फोकस ऑन दिस पार्ट. इसका मतलब ये नहीं अगले पार्ट में से कुछ नहीं पूछूंगा, अगला तो पूछते ही रहूंगा. अब जैसे संडे एग्जाम का मैंने पोर्शन डाला, वेक्टर में हमेशा डालते रहूंगा. उसका सिंपल रीजन है, वेक्टर आपको आगे के जो भी चैप्टर्स शुरू होने वाले हैं सब जगह पे वेक्टर्स काम में आने वाले हैं. खाली एक ही चीज है जो मेन टाइप है वो ज्यादा पूछूंगा. लाइक रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो ज्यादा पूछूंगा, राइट. तो लेट अस टेक अप दिस एमसीक्यूज फर्स्ट. आर वी ऑन असाइनमेंट 1? आर वी ऑन क्वेश्चन नंबर 16? ये सब आंसर्स मैं रीड करता हूँ, ओके. ये सब आंसर्स मैं रीड करता हूँ. जिधर भी आपको नहीं आया, कुछ भी नया वर्ड सुना जो स्कूल में नहीं सुना था, प्लीज डू नॉट हेजिटेट. एग्जाम्पल देता हूँ.
वेक्टर्स में क्रैमर्स रूल डिटर्मिनेंट एसएससी के स्टूडेंट्स को था, लेकिन बाकी लोगों को नहीं था। वैसा ही एक रूल है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब वो सीबीएसई वालों को नहीं था। कितने लोग सीबीएसई में थे बेटा? अब ये सीबीएसई वालों को नहीं था, बाकी लोगों को था। जैसा कुछ भी है जो आप लोगों ने नहीं सुना है, डोंट हेजिटेट प्लीज। मे बी इट वॉज नॉट देयर फॉर योर बोर्ड, बट इट वॉज देयर फॉर अदर बोर्ड्स। अभी मेरे लिए तो 11th में सब बच्चे सेम है ना, एसएससी, आईसीएसई, सीबीएसई, आईजी एंड आईबी, राइट? आईजीसीएस एंड आईबी। तो जो भी नहीं सुना है बिंदास पूछ लो। मेरे लिए 10-15 सेकंड का काम होगा, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट। आर वी ऑन असाइनमेंट नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 16 तक अपना हो चुका था, 15 तक। चलो मैं आंसर्स रीड करता हूं बेटा, जो भी नहीं आया मुझे पूछो, मैं बोर्ड पे सॉल्व करता हूं। 16th का आंसर इज बॉम्बे। आया सबको? 16th का आंसर इज बॉम्बे। नाउ हियर वन स्मॉल थिंग टू बी एडेड इन योर नोट्स आफ्टर आई फिनिश। लीटर इज अ कन्वीनियंट यूनिट ऑफ वॉल्यूम. ऑफिशियल यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब एंड सेंटीमीटर क्यूब. 1 लीटर, पहले सुन लो बेटा, पहले सुन लो। 1 लीटर इज इक्विवेलेंट टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब एंड इज इक्विवेलेंट टू 1/1000 मीटर क्यूब. That means 10⁻³ meter cube. This is MKS unit of volume, CGS unit of volume, day to day life. सुबह दूध वाला भैया आता है तो मम्मा ये नहीं बोलेगी भाई साहब 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब. दूसरे दिन से वो आना बंद कर देगा, सिटानी सटिया सुबह सुबह कुछ भी बोलती है. बट ऑफिशियली वो MKS यूनिट था. डे टू डे लाइफ में लोगों को ये समझ में आता है. हम लोग डे टू डे लाइफ में ये बोलते हैं भाई साहब 2 लीटर दूध देना, 2.5 लीटर दूध देना, लाइक दैट, राइट? बट ऑफिशियल यूनिट्स आर MKS एंड CGS. बुक के एकदम स्टार्टिंग में 0th पेज पे लिखो. हाँ, यहाँ पे लिखो बेटा. यहाँ पे मैं जो भी लिखवाता हूँ ना, मतलब दैट इज नॉट नेसेसरीली एप्लीकेबल ओनली टू दिस चैप्टर. दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल चैप्टर्स. दिस इज इवन यूजफुल इन केमिस्ट्री. This is even useful in chemistry. Add करो. चलो. 1 liter is 1000 centimeter cube and it is 1000th part of a meter cube. अब ये प्रॉब्लम में पंगा नहीं है. Reason, data is in liter. And options are also in liter. So it is something like your present age is 16 years. 5 years before you were 11 years. Right? तो मैं इसमें एज को सेकंड में कन्वर्ट नहीं करता हूँ because age is given, age is expected. Right? Sometimes wavelength related problems. If the data is in angstrom unit and if the options are also in angstrom unit, no need to convert angstrom unit to meter. But if data is in angstrom unit and options are in meter, then you must write 1 angstrom unit is 10⁻10 meter. Logic समझा बेटा? Back to the question. ये पूरा क्वेश्चन ही लीटर में था. ऑप्शन भी लीटर में थे और क्वेश्चन भी लीटर में था. So no need to convert. Did you use V1/V2 is T1/T2? गैस लॉस में सबसे कंपल्सरी क्या है? टेम्परेचर शुड बी कंपल्सरीली इन केल्विन. rather they mention all. Question number 17 answer is C. Question number 18 answer is A. बेटा ये आया कि नहीं आया? जिनको नहीं आया मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, वापिस एक बार बोलता हूँ. ये फॉर्मूला याद करो. स्केल 1 माइनस LFP अपॉन UFP माइनस LFP इज इक्वल टू स्केल 2 माइनस LFP अपॉन UFP माइनस LFP. अब ये प्रॉब्लम में 18th प्रॉब्लम में एक डेटा सेंटीमीटर में दिया हुआ है और एक डेटा सेंटीग्रेड में दिया हुआ है. तो मुझे सेंटीग्रेड तो पता है ना. ध्यान से देखो, ये पार्ट फिक्स है कि नहीं बेटा? ये पार्ट फिक्स है कि नहीं? ये मुझे सेम दिख रहा है कि नहीं? ये मुझे सेम दिख रहा है कि नहीं? अब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड वाले को मीटर स्केल ले लेता हूं और राइट हैंड साइड वाले को मैं थर्मोमीटर ले लेता हूं. एटलीस्ट मुझे थर्मोमीटर कैसे लिखने का वो पता है. यस और नो? थर्मोमीटर में टेम्परेचर रीडिंग क्या होता है? थीटा. सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन. देयरफॉर 0, 100, 0.
ये समझा बेटा जिसको ये क्वेश्चन नहीं आया था? हाँ, अभी स्केल वाला डेटा लिखता हूं मैं। ये मीटर स्केल है ना, तो इधर मैं लिखूंगा लेंथ माइनस, अभी उसके अपर और लोअर फिक्स पॉइंट दिए है, चेक करो। लोअर फिक्स पॉइंट कितना है? 10 पॉइंट समथिंग, 10.3। अपर फिक्स पॉइंट 26.8, सॉरी 26.8, माइनस 10.3 अगेन। बेटा जिनको 18th क्वेश्चन नहीं आया था हाथ ऊपर करो। ओके, यहां तक समझा? अब चेक करो, उन्होंने लेंथ दिया है 6.5, उन्होंने लेंथ दिया है 6.5 सेंटीमीटर, तो उसका करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर पूछा है। अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। और एक थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करने का, ध्यान से सुनो बेटा, सब लोग ध्यान से सुनो। मेरे पास एक स्केल है और मेरे पास एक थर्मोमीटर है, बराबर? ये स्केल हुआ और ये थर्मोमीटर हुआ। इसका लोअर फिक्स पॉइंट है 0 और इसका अपर फिक्स पॉइंट है 100। इसका करस्पॉन्डिंग लोअर फिक्स पॉइंट है 10.3 और इसका अपर फिक्स पॉइंट है 26.8। अब उन्होंने क्वेश्चन में वर्ड यूज किया है फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्रीजिंग मिक्सचर मतलब टेम्परेचर विल बी बिलो 0। फ्रीजिंग मिक्सचर वी नॉर्मली यूज इन प्रिजर्विंग द फूड प्रोडक्ट्स। हम लोग घर में भी जब खाना कुछ बचता है तो फेंकते नहीं है, फ्रीज में रखते हैं, राइट, ताकि वो डीके नहीं हो। रीजन, लोअर टेम्परेचर्स पे बैक्टीरिया और वायरसेस सर्वाइव नहीं करते। यस और? तो इसमें जो उन्होंने लेंथ दिया है वो 6.5 दिया है, चेक करो। एंड 6.5 इज नॉट बिटवीन 10.3 एंड 26.8। मतलब मेरा आंसर 0 और 100 के बीच में नहीं आएगा। अगर ये 10.3 के नीचे है तो मेरा आंसर 0 से नीचे होगा, इसलिए ऑल 4 ऑप्शंस आर इन नेगेटिव टेम्परेचर्स। लॉजिक समझा? अभी जिनको नहीं आया था बेटा लेंथ की जगह पे 6.5 रखने का, तो कॉमन सेंस की बात है, ये डिफरेंस नेगेटिव हो गया, तो आपका ये आंसर भी नेगेटिव आएगा। रुक जाओ, जिनको 18th नहीं आया था प्लीज लेट मी नो, डिड यू गेट 20? सी इसमें एक, और ये मैं बार बार सिखा चुका हूं, उसके बावजूद भी तुम लोगों को नहीं आता है, मींस यू नीड टू प्रैक्टिस। हम लोग थर्मोमेट्री ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, उसके ऊपर कितनी बार प्रॉब्लम्स पूछ चुका हूं मैं। हाँ, तो 18th एंड 20 में सेम फॉर्मूला, जिनको नहीं आया था ये फॉर्मूला। 18th में एक स्केल है, एक थर्मोमीटर, और 20 में शायद दोनों थर्मोमीटर। चलो जिनको नहीं आया था 18 और 20 का हिंट लिखो। 18th का आंसर आएगा -23 डिग्री। उसमें एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं आया तो भी चलेगा, बिकॉज ऑप्शंस दूर दूर है, तो यू डोंट नीड टू गेट -23.03, इट इज ओके, नो प्रॉब्लम। So question number 18 and 20, the answers are respectively 18 का आंसर A, 20 का आंसर भी A। 20 जिनको नहीं आया था हिंट लिख के रखो, सेम है देखिए। 19th रिपीट हुआ, राइट? At what temperature Celsius and Fahrenheit match? -40. And at what temperature Fahrenheit and Kelvin match? That means answer is both A and B. Question number 21. Temperature at which Fahrenheit scale reading is equal to twice of Celsius scale. Common sense apply करो बेटा। C upon 5 is F minus 32 upon 9. कौन सा स्केल डबल है? Fahrenheit, बराबर? मतलब सेल्सियस स्केल अगर C है तो C upon 5, this is double of C, minus 32 upon 9, right? So 9C is equal to 10C minus 160. That means C should be 160. Is that clear? शायद ये मैंने संडे एग्जाम में शायद ये मैंने संडे एग्जाम में पूछा था। वो लोग ट्वाइस के बदले थ्राइस बोल सकते हैं, क्वाड्रुपल बोल सकते हैं, टाइप समझ में आना चाहिए। एक बार टाइप समझा देन देयर इज नो प्रॉब्लम। सो दिस वाज द पेंडिंग डाउट्स ऑफ असाइनमेंट 1, बराबर? आर यू ऑन प्रैक्टिस पेपर 1 नाउ? आई विल रीड द की फॉर यू, राइट? जो आंसर मैच हो गया फन, जो मैच नहीं हुआ, जो नहीं समझा, डोंट हेजिटेट, प्लीज आस्क। प्रैक्टिस पेपर 1, फर्स्ट 27 क्वेश्चंस, आई थिंक 26 क्वेश्चंस वर डिस्कस्ड। इसका मैं सोल्यूशन नहीं देने वाला, हैंड रिटन सोल्यूशन। जैसे जैसे टफनेस बढ़ेगा वैसे वैसे मैं हैंड रिटन सोल्यूशन दूंगा। प्रैक्टिस पेपर 1 का नहीं देने वाला, तो डाउट्स क्लियर कर लो जो भी है। 1 to 26 वर डिस्कस्ड।
27 is on hold. 28, 29, 30. The answers are respectively 3, 3, 2. किसी को कोई डाउट, कोई भी वर्ड नहीं समझा, कोई भी टर्म नहीं समझा, why this option is this only नहीं समझा, please ask. I repeat, 28, 29, 30, no doubt. 31, answer is third option, PV equal to RT. If it was N kilomoles, then nRT. 32, answer is second option. अब इसमें बेटा वो k raised to -1 में k small print हुआ है. Make it capital because small k का मतलब होता है किलो और capital K का मतलब होता है केल्विन. Small k is किलो, capital K is केल्विन. तो भले second option correct है, लेकिन उसमें k symbol misprint था. Change करो please. Red pen anybody? Red pen. Next one. क्वेश्चन नंबर 33 को होल्ड पे रखो. ये ट्रिपल पॉइंट भले मैंने संडे एग्जाम में पूछा था, लेकिन उसका वैल्यू दे नियॉन. इट वाज नियॉन. ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू. ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज 0.01 डिग्री सेल्सियस. मतलब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस से जस्ट ऊपर, राइट? That means Kelvin scale में it is 273.16. One line explanation दूँ तो triple point of matter का मतलब ये होता है कि it is that situation where you observe solid state, liquid state and gaseous state simultaneously. Right? In practical life, the best example is your refrigerator. Open the refrigerator का deep freezer box. You will see pieces of ice. Means it is a solid state. Touch it. Your fingers become wet. That means it is a liquid state. And you see the vapors coming out. I have not used the word steam, mind you. I have used the word water vapor. वो भी तो gaseous state ही है ना? तो ice, water and water vapor, not steam. They coexist. Coexist मतलब simultaneously exist. That situation is called triple point. तो अभी तक मैंने triple point explain नहीं किया क्योंकि मुझे वो ग्राफ के साथ एकदम डिटेल में explain करना है. Because it is very important part of thermodynamics, physics, chemistry point of view. तो खाली ये क्वेश्चन टेम्पररीली सर्कल करके रखो और बोलो, पेंसिल से लिखना प्लीज. वेट फॉर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. वेट फॉर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. अदरवाइज बेटा ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला एकदम सिंपल है. प्रेशर 1 अपॉन प्रेशर 2 इज टेम्परेचर 1 अपॉन टेम्परेचर 2. 4 में से 3 दे देंगे और इसमें भी कंपल्सरी you have to substitute the temperature value in Kelvin. Question number 34. ये शायद नहीं आया होगा. शायद नहीं आया. जिनको नहीं आया ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो. ये कॉपी करने की जरूरत नहीं है जो मैं लिख रहा हूं because it is already there in your iPad notes. PV is equal to nRT में n के दो मतलब थे और ये n कंपल्सरीली छोटा n लिखना होता है. राइट? n के दो मतलब थे. एक मीनिंग था स्मॉल m अपॉन बिग m और एक मीनिंग था कैपिटल N अपॉन n0. इसका मतलब होता है मास ऑफ द गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. मास ऑफ द गैस इज एग्जामिनर्स चॉइस whereas molecular weight is a fixed value. मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो बेटा डिनोमिनेटर फिक्स है 32. एग्जामिनर मुझे 4 ग्राम दे सकता है, 8 ग्राम दे सकता है, 16 ग्राम दे सकता है, 32 दे सकता है, 64 दे सकता है, 128 दे सकता है, whatever. Numerator is examiner's choice. Denominator is fixed. The way denominator is fixed. आपका फिजिक्स का बोर्ड पेपर 100 मार्क्स का है. अब इसमें से आपको कितना आता है वो आपके ऊपर. लेकिन इसमें एक ही है कि आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा है या तो सेम. मैक्सिमम यू कैन गेट 100 on 100. यहाँ पे ऐसा नहीं है. मॉलिक्यूलर वेट इज 32. मैं आपको 64 ग्राम ऑफ गैस दे सकता हूँ. मींस आई एम गिविंग यू 2 किलोमोल. मैं आपको 32 3 96 ग्राम दे सकता हूँ, मतलब 3 किलोमोल. इज दैट वेरी क्लियर? तो इसमें बेटा डिनोमिनेटर फिक्स्ड है और न्यूमरेटर एग्जामिनर की चॉइस है. एग्जामिनर आपको जो चाहे दे सकता है. लाइकवाइज डिनोमिनेटर इज अ फिक्स्ड वैल्यू. इट इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर. सुना है ना सबने केमिस्ट्री में? And this is number of molecules given to you. So again, numerator is variable
Denominator is fixed. What is Avogadro's number? 6.03 into 10 raised to 23 molecules per mole. 10 raised to 26 molecules per kilo. 10 raised to 23 per mole. 10 raised to 26 per kilo. Usually chemistry people prefer mole. Usually physics people prefer kilomole. लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं. हम लोगों ने अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व किया. R was 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन. फिजिक्स का क्वेश्चन है ना, तो उसमें भी मोल आया ना. तो मोल आया तो 10⁻23, किलो मोल आया तो 10⁻26. ये पार्ट बेटा आपके आईपैड नोट्स में है. तो ये क्वेश्चन में कैच सिर्फ इतना था कि PV इज इक्वल टू NRT में N का मतलब आप लोगों को लिखना है मास ऑफ द गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. बराबर. आई थिंक अभी सब कुछ दिया है, प्रेशर को छोड़ के सब कुछ दिया है. वॉल्यूम इज गिवन है 0.025. तो सिंपल कैलकुलेशन के लिए आप उसको 25/1000 लिख सकते हो. एन का मतलब 16/32 बिकॉज आई थिंक द गैस इज ऑक्सीजन. एम आई राइट? आर का वैल्यू मालूम है आप लोगों को. टी का वैल्यू उन्होंने 27 डिग्री सेल्सियस दिया है शायद. डोंट फॉरगेट टू एक्सप्रेस दिस इन केल्विन. सॉल्विंग के बाद आपका आंसर आ रहा है शायद 5 × 10⁴. Am I right? Yes. Your answer is coming as third option. तो जिनको ये नहीं समझा था, अभी समझा? राइट? नहीं समझा था तो हिंट लिख के रखो. PV is equal to NRT where N is छोटा m अपॉन बड़ा m. छोटा m is 16 ग्राम, बड़ा m is 32 ग्राम. तो anyways ग्राम ग्राम कैंसिल होने वाला है. That means number of moles given to you was half. So we are on 34th question. Answer was C. I continue. 35th में बेटा वो जो 170 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो यूनिट मिसप्रिंट है, वो क्यूब होना चाहिए. क्यों? बिकॉज इट्स अ वॉल्यूम. इट्स अ वॉल्यूम. A certain mass of air at 60 degrees Celsius occupies 170 centimeter cube. Pressure remaining constant. Common sense. V1/V2 is T1/V2. V1/V2 is. ऐसे टाइप के क्वेश्चन में बेटा सबसे ज्यादा सिंपल फॉर्मूला कौन सा है मालूम है? Always go for this. I will show you 3 problems like that. Always go for this. P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. Because ये फॉर्मूला में तीनों लॉज आ जाते हैं. अब ये क्वेश्चन में बोला प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, तो प्रेशर कट हो जाता है. इज दैट क्लियर? अभी 37th और 39th क्वेश्चन देखो. उसमें बेटा सब कुछ वेरिएबल है, चेक करो. 37th क्वेश्चन में और 39th क्वेश्चन में सब कुछ वेरिएबल है. चेक करो. 37th क्वेश्चन में उन्होंने बोला है गैस एट 10 डिग्री सेल्सियस इज हैविंग टेम्परेचर रेज्ड सो दैट द वॉल्यूम इज डबल एंड प्रेशर इज कांस्टेंट. अच्छा प्रेशर कांस्टेंट तो वापस कर दो. बराबर. 38th क्वेश्चन में प्रेशर इज व्हाट इज द प्रेशर ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस. प्रेशर इज डबल. टेम्परेचर इज रेज्ड टू 114. इसका मतलब इसमें सब कुछ चेंज हो रहा है. 38th क्वेश्चन में सब कुछ चेंज हो रहा है. एवरीबडी हियर. 38th क्वेश्चन. इनिशियल प्रेशर वाज P. इनिशियल वॉल्यूम वाज 1 लीटर. इनिशियल टेम्परेचर प्लीज 300 केल्विन. नाउ न्यू प्रेशर इज डबल्ड. नो, न्यू वॉल्यूम पूछा है एंड न्यू टेम्परेचर प्लीज हाउ मच? After adding 273 it will become correct. तो ये प्रेशर कट हुआ, right? And obviously this 387 will be divisible by 300. So can I write this as V2 is equal to 387 ऊपर गया, 300 नीचे ही है और ये 2 भी नीचे आया. Yes or no? तो ये बेटा आपका right. ये जो भी आंसर आएगा that will be लीटर. कितना आ रहा है वो? 0.645 आ रहा है. बराबर. This is 3.87 upon 3 into half. That means it is 1.29 upon 2. So this is 0.645 लीटर. अब ये कन्वर्जन मैंने आज ही सिखाया ना. किधर मैंने रब कर दिया हो? हाँ. तो 1 liter is 10⁻+3 centimeter cube. So 0.645 into 1000. 645 centimeter. This question was a better one because data was in liter and options were in centimeter. So conversion very important.
सो ये बेस्ट फॉर्मूला है बेटा, इसमें सब कुछ आ जाता है. बाई चांस जो कांस्टेंट बोला है उसको कैंसिल कर दो. मैंने बोला वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कैंसिल कर दो तो गेल-यूज़ैक्स लॉ हो गया. मैंने बोला प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर पॉइंट कैंसिल कर दो, चार्ल्स लॉ हो गया. मैंने बोला टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टी कैंसिल हो गया, बॉयल्स लॉ. सो द बेस्ट फॉर्मूला इज दिस. ऐसे सब सल्फ में यही फॉर्मूला यूज करो, राइट. सो गोइंग बैक टू क्वेश्चंस. 37 का आंसर सबको बॉम्बे आया. 37 का आंसर एक्चुअली आता है 566 केल्विन, राइट. और बाद में उसको ऑप्शन चैलेंजिंग थे. फर्स्ट ऑप्शन देखो 566 दिया है. सो डोंट गेट हिप्नोटाइज्ड बाय द नंबर. लुक एट द यूनिट आल्सो. लुक एट द यूनिट आल्सो. बराबर. योर आंसर वाज सेकंड ऑप्शन. 38 का आंसर इज सेकंड ऑप्शन अगेन. 39 का आंसर इज सी. सॉल्व करने के बाद बेटा आपका आंसर आता है 1172 केल्विन. अगेन रिस्की ऑप्शन. लास्ट ऑप्शन देखो 1172 है बट वो सेल्सियस में है. तो 1172 केल्विन minus 273 is 899 Celsius. Be careful, please. Be very careful. Right? Finally, question number 40 का answer is glass. Amongst metals and glass, who is a better conductor? Metal. So glass is having poor conductivity. If I am taking hot tea in a ceramic glass and in a steel glass, तो I will feel steel glass hotter, no? मैंने सेम टाइम पे दोनों में टी डाला, मतलब मेरा स्टार्टिंग टेम्परेचर सेम था, बट स्टिल बीइंग अ बेटर कंडक्टर देन ग्लास, आई कैन होल्ड दैट सिरेमिक ग्लास, बट वो स्टील ग्लास मुझे बहुत गर्म फील होगा. तो आई हैव टू टेक हेल्प ऑफ सम क्लॉथ और समथिंग और मे बी पेपर नैपकिन और समथिंग. ये सारा डाउट्स क्लियर बेटा? एवरीबॉडी? अभी जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, वन बाय वन लाइन से सॉल्व करूंगा. वन बाय वन आप कॉपी करोगे, एकदम सिस्टमेटिकली कॉपी करना. बिकॉज नाउ आई एम टेकिंग यू टू असाइनमेंट नंबर 2 एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस नंबर 1 to 5. मालूम है बेटा, डिस्कस करना बाकी है. आपको सब नहीं आया होगा उसमें. हाँ, 5th वाला सुपर क्वेश्चन. हाँ, 6th क्वेश्चन को सर्कल करो पेंसिल से और बोलो वेट फॉर थर्मल स्ट्रेस. वेट फॉर थर्मल स्ट्रेस. 6th क्वेश्चन आज नहीं करेंगे. देन वी विल डू 7th, 8th and 9th एंड देन वी विल डू 21st. मैंने आपको 5 ही क्वेश्चन करने को बोला, उसमें भी 5th नहीं आया होगा मोस्टली स्टूडेंट्स को. वेरी गुड क्वेश्चन, राइट. शुरू करें वन बाय वन. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इजी. इज इट द फॉर्मूला? L2 minus L1 upon L1 times T2 minus T1 if T is the temperature. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर होना चाहिए बॉम्बे. ऑप्शन बॉम्बे. यस और नो? सेकेंड क्वेश्चन. पूछने का स्टाइल अच्छा है, इसमें कन्वर्जन कैसे करने का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. When I talked about metals, I said that for most of the metals, alpha का value is in the range of 10⁻⁻6 to -5. I cannot take chance now because I can see some options in 10⁻⁻6 and I can see some options in 10⁻⁻5. So everybody here, using the first formula, can I say alpha is new length minus old length upon old length times new temperature minus old temperature. Can you please help me with the temperature values? 90 and 15. So can I say alpha is numerator is 0.15, denominator is 50 into 75, right? So can I write numerator, ध्यान से सुनो बेटा, right? Can I write numerator as 15 into 10⁻²? सब लोगों को डेसिमल पॉइंट कैसे शिफ्ट करते हैं आता है कि नहीं आता है? आता है. एकदम श्योर? सब लोगों को? मेरे लिए 15 सेकंड का काम है, नहीं आता है तो पूछ लो. ये समझा? ये मैंने डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे 2 प्लेसेस शिफ्ट किया, इसलिए पावर 10⁻² आया. अगर मैं लेफ्ट साइड पे 2 प्लेसेस शिफ्ट करता हूँ, राइट, जो डायरेक्शन में जाते हो ना पावर उल्टा डायरेक्शन में जाता है टू कंपनसेट. अब ये मैंने 15 क्यों लिखा? क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में 75 दिख रहा है, राइट. यू शुड प्लान योर कैलकुलेशंस दैट वे. 50 into 75, 15 5s are 75. That means this becomes 10⁻² upon 250.
अब एकदम ध्यान से सुनो, एकदम सिंपल टेक्निक सिखाता हूं आप लोगों को। जब ये टाइप की कैलकुलेशन सॉल्व करने हैं, कीप मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय पावर ऑफ 10 till the numerator just becomes more than denominator. Till the numerator becomes more than denominator. Multiply and divide by 10. So 10 is less than 250. So divide by 10 more. 100 is still less than 250. Multiply and divide by 10. Right? 10, 10, 10. ये 1000 हो गया? तो 1000 upon 250 मैंने साथ में लिया. राइट 10 raised to -2 ये वाला था और 10 raised to +3 ये वाला है बराबर. दिस बिकम्स 4 एंड दिस बिकम्स 10 raised to -5. समझा क्या करने का फास्ट कैलकुलेशन में. आप कोई भी एक अजीब सा फ्रैक्शन बोलो जो लगता है यार दिखने में बहुत डिफिकल्ट है, अजीब सा, मतलब न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिनोमिनेटर. 0.07 अपॉन 350. इजी है बेटा. 7 5 35. 337 आड़ा टेढ़ा नंबर, एकदम गंदा नंबर. कैन आई राइट दिस इज 7 into 10 raised to -2 upon 337. Multiply by 10, not happy. Multiply by 10 more, happy. Because now this is 700 upon 337 into 10 raised to -4. 337 2s are 674. तो मेरा आंसर 2 point something into 10 to -2. So हमेशा क्या करने का, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय पावर ऑफ 10. When you just get numerator more than denominator, stop. बराबर. डिनोमिनेटर का पावर टच नहीं करने का, न्यूमरेटर पावर इसको देने का ताकि वो नंबर बड़ा हो जाए. लॉजिक समझा? योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज 4 into 10 to -5. Why solving was necessary? Because ये option 4 into 10 to -6 था, so you cannot take chance. Is that clear? Second question समझा सबको? पावर का एडजस्टमेंट कैसे करने का समझा बेटा? सुपर श्योर. So question number 1 and 2 solutions on the board. ये कैलकुलेशन थोड़ा मैं रिड्यूस करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1000 कर देता हूँ, चलेगा? ये कैलकुलेशन में थोड़ा रिड्यूस करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1000 करता हूं. करेक्ट. इसको मैंने इसके साथ लिया बिकॉज वही तो मुझे करना था, और इसको मैंने इसके साथ लिया. इज दैट क्लियर? सो माय आंसर इज फाइनली 4 into 10 raised to -5 per degree Celsius. क्वेश्चन नंबर 2 समझा सबको? क्वेश्चन नंबर 3 लॉजिकल है बेटा, सॉल्व नहीं कर रहा हूं. Apply common sense. Anything expands on heating. Here you are. So anything contracts on cooling. आपका स्टार्टिंग टेम्परेचर 65 था, आपका एंडिंग टेम्परेचर 0 है, मतलब आप रॉड को हीट कर रहे हो कि कूल? तो फाइनल लेंथ ज्यादा होना चाहिए कि कम? आपका स्टार्टिंग लेंथ 50 था, तो आपका फाइनल लेंथ 50 से कम होना चाहिए. एकमात्र ऑप्शन. अगर 2 होते तो वो लोग ऑप्शन ऐसे देते ताकि आपका कैंसिलेशन इजी हो जाए. अब जैसे ये अजीब सा टेम्परेचर दिया ना, लेकिन उसके पीछे का एक लॉजिक था कि ये 75 होता है, आपका ये कैंसिलेशन इजी हो जाए. तो ये क्वेश्चन में जो 65 दिया है ना, अब अगर मान लो ऐसे 2 ऑप्शन है जो 50 से कम है, तो लोग नंबर ऐसे एडजस्ट करके देंगे कि आपका कैलकुलेशन इजी होगा. सिंपल रीजन, दे आर नॉट गिविंग यू लॉग बुक, नॉट दे आर गिविंग यू कैलकुलेटर. तो समवेयर दे हैव टू सपोर्ट यू. नंबर आड़ा तेरा दिया तो जानबूझ के ऐसा देंगे कि कहीं ना कहीं वो कैंसिल होता है. सो मेनी अ टाइम्स इन द पास्ट आल्सो आई हैव टोल्ड यू, व्हेन दे गिव यू अजीब सा नंबर्स, दैट मींस दे लव यू, दैट मींस एक्चुअली दे वांट यू टू डू सिंपल कैलकुलेशंस. चलो नेक्स्ट वन. थर्ड क्वेश्चन का आंसर इज द नंबर व्हिच इज लेस देन 50. आई थिंक 49.95 is the option. फोर्थ ऑप्शन, ये बेटा मालूम है स्कूल से कि नहीं मालूम? सीबीएसई वालों को ये नहीं मालूम, सीबीएसई वालों को ये नहीं मालूम. ध्यान से सुनो, कॉपी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं. हैव यू हर्ड अबाउट द वर्ड एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर? वो भी नहीं मालूम. वाटर बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 4 डिग्री सेल्सियस बिहेव्स एग्जैक्टली उल्टा, राइट? अभी ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज सच अ ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ नेचर
to the marine life, to the life in North Pole and South Pole. वहाँ पे बेटा temperature 0 से कम है, right? तो if this is a lake, right? The upper part of the lake is now frozen, but lower part of the lake is water only. That means the fishes can still survive, right? They will not die, right? This is thanks to anomalous behavior of water. अब इसमें क्या होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस या तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। मान लो बेटा मैं रूम टेम्परेचर ले रहा हूं अभी का 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब मुझे ये टेम्परेचर की रेंज को दो पार्ट में स्प्लिट करना है, राइट? 0 to 4 and 4 to next। अभी मैं 5 लू, 10 लू, 25 लू, 100 लू, जो भी लू, मुझे एक ब्रेक लेना है 4 डिग्री सेल्सियस पे। नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग व्हेन आई गो फ्रॉम 0 to 4, am I heating it? Yes. And when I go from 25 to 4, am I cooling it? Yes. मतलब मेरा फाइनल डेस्टिनेशन 4 ही, राइट? जब मैं 0 से 4 जा रहा हूं, मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, और जब मैं 25 से 4 जा रहा हूं, मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूं। तो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है? एनीथिंग एक्सपांड्स ऑन हीटिंग, एनीथिंग कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। बट वाटर बिटवीन 0 and 4 बिहेव्स उल्टा, एग्जैक्टली उल्टा। सीबीएसई स्टूडेंट्स, 0 और 4 के बीच में बेटा टेम्परेचर बढ़ रहा है, वाटर का वॉल्यूम कम होता है। दिस इज कॉल्ड वियर्ड बिहेवियर ऑफ वाटर, मतलब वॉल्यूम बढ़ने के बजाय कम होता है सिर्फ 4 डिग्री तक। उसके बाद में अगर मैं 4 to 25 गया, सपोज ये एरो मैंने उल्टा किया, टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम भी बढ़ा। मैं ऐसे जा रहा हूं, टेम्परेचर कम कर रहा हूं तो वॉल्यूम कम हो रहा है, क्योंकि वो नॉर्मल बिहेवियर है। दिस पोर्शन इज एनोमेलस बिहेवियर एंड दिस पोर्शन इज नॉर्मल बिहेवियर, बराबर? एनीथिंग एक्सपांड्स ऑन हीटिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। तो बेटा वॉल्यूम इधर भी कम हुआ और वॉल्यूम इधर भी कम हुआ। मतलब व्हाट कैन यू से अबाउट दिस टेम्परेचर? This is the temperature at which volume of water is the least, and therefore density of water must be the most. समझा? Is that clear? ये लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, very beautifully given. iPad notes में पेज 3 जाके चेक कर लेना बेटा। तो सब लोग एटलीस्ट ये क्वेश्चन के लिए कमेंट लिख लो। For detailed explanation, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कमेंट लिखो। फॉर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रिफर iPad notes पेज 3। इट इज गिवन वेरी ब्यूटीफुल। मैंने जो स्टाइल में एक्सप्लेन किया वही स्टाइल में दिया। नाउ वी आर कमिंग ऑन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या था बाय द वे? फोर्थ ऑप्शन था कि सेकंड? दिल्ली। अच्छा, और 4 का आंसर क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद में आप लोग असाइनमेंट 2 का 7th क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, असाइनमेंट 2 का 21st क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस पेपर 2 का 8th क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और प्रैक्टिस पेपर 2 का 10th क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन पे एकदम ज्यादा फोकस करो, ओके? एकदम ज्यादा। हाउ टू सॉल्व दिस वेरी सिस्टमेटिकली। ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज फर्स्ट। What should be the lengths of steel rod and copper rod at 0 degree Celsius? मतलब they are given you 2 different rods, such that the length of steel rod is 5 centimeters longer than copper rod at all temperatures. At all मतलब जब आपने ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया था तभी भी उनका लेंथ सेम नहीं था, पेंसिल तभी भी उनका लेंथ सेम नहीं था। ठीक, ये 2 रॉड दिए बेटा मैंने। हाँ, ये 2 रॉड दिए। ऑब्वियसली द लेंथ्स आर डिफरेंट, यू कैन सी दैट, राइट? सपोज इसका लेंथ 10 है तो इसका लेंथ 15 है। हीट करने के बाद ये 11 हुआ तो ये 16 हुआ, 12, 17, 20, 25। इनका डिफरेंस हमेशा 5 सेंटीमीटर रहने वाला है एट ऑल टेम्परेचर्स। नाउ हाउ डू आई अंडरस्टैंड दिस मैथमेटिकली? कौन सा रॉड लॉन्गर है?
स्टील रॉड लॉन्गर है. ओके, मैं स्टील रॉड को रॉड नंबर 1 बोलता हूं और कॉपर रॉड को रॉड नंबर 2 बोलता हूं. तो अगर मैंने इनिशियल लेंथ ऑफ कॉपर रॉड x लिया तो इनिशियल लेंथ ऑफ स्टील रॉड x + 5 होना चाहिए कि नहीं? बराबर. ओके, नेक्स्ट, इसका इनिशियल टेम्परेचर अगर 0 लिया तो इसका टेम्परेचर भी 0 लेना चाहिए. इसका फाइनल टेम्परेचर सपोज थीटा लिया तो इसका फाइनल टेम्परेचर भी थीटा लेना चाहिए, बिकॉज उन्होंने एट ऑल टेम्परेचर्स बोला है. मतलब आप दो चीजें मेंटेन कर रहे हो. ये प्रॉब्लम में दो चीजें मेंटेन कर रहे हो. डेल्टा एल इज कांस्टेंट ऑलवेज. सोचो, डेल्टा एल इज कांस्टेंट ऑलवेज एंड इवन डेल्टा थीटा इज कांस्टेंट ऑलवेज. सोचो, क्योंकि एट ऑल टेम्परेचर बोला है. यस और नो? इज दैट वेरी क्लियर? मैंने मान लो एक रॉड को 0 डिग्री सेल्सियस से शुरू किया तो मुझे दूसरे रॉड को भी 0 डिग्री सेल्सियस से शुरू करना चाहिए. नो पार्शियलिटी. So it is something like this. Nayan sir is teaching you equally. Nayan sir का लेक्चर का स्टार्टिंग टाइम सबके लिए सेम है, एंडिंग टाइम सबके लिए सेम है. ऐसा नहीं इसको 5 मिनट ज्यादा पढ़ा है, इसको 10 मिनट कम पढ़ा है, इसको पढ़ाया है. नो, आई एम टीचिंग इक्वल, बट स्टिल योर मार्क्स आर डिफरेंट बिकॉज दैट इज डिपेंडेंट ऑन द मटीरियल. Material over here means steel and copper, different materials. You get different marks because that is decided by your focus, your understanding, your IQ, your hard work, and your state of mind at the time of exam. ये चारों फैक्टर्स आपके मस्त है. आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, आपने सब कुछ पढ़ के आया है, सब कुछ, बट यू आर हाइपर इमोशनल. थर्ड क्वेश्चन नहीं आया, राइट? पता चला डिप्रेस हो गया, 4 से 10 तक भी नहीं आया, राइट? डोंट बी इमोशनल. एट अ टाइम ऑफ राइटिंग एग्जाम यू टू बी वेरी प्रैक्टिकल. मुझे थर्ड क्वेश्चन नहीं आया, कोई बात नहीं, आई विल सी यू लेटर. आई कैन नॉट पनिश 4th to 10th. सो डोंट फॉल इन लव विथ अ क्वेश्चन. नहीं आया, जाने दो, नो प्रॉब्लम. एग्जाम जब एंड हो जाएगा लास्ट में 5-10 मिनट में वो क्वेश्चन वापस विजिट करेंगे. Moral of the story, is it decided by the nature? So this was the most important part of the question. This was the most important part of the question. बेटा ये पार्ट समझा? इनका लेंथ डिफरेंस हमेशा 5 सेंटीमीटर रहने वाला है, राइट? और इनका टेम्परेचर डिफरेंस हमेशा सेम रहने वाला है. दोनों रॉड को 0 से 50 हिट किया, दोनों रॉड को 25 से 100 हिट किया, दोनों रॉड को 35 से 200 हिट किया. You just have to take care that they should not melt. ये बात समझा बेटा? श्योर. उन्होंने फर्स्ट रॉड का लेंथ पूछा है और उन्होंने सेकंड रॉड का लेंथ पूछा है. और ये आपको पता है डेल्टा एल इज हाउ मच? डेल्टा एल इज हाउ मच? ये आपको पता है. इज इट 5? ऑलवेज, राइट? नाउ समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इंपॉर्टेंट. बिफोर यू कॉपी द प्रॉब्लम, आई विल मेक यू कॉपी वन थिंग, राइट? इन द बिगिनिंग ऑफ योर बुक. एकदम ध्यान से सुनो. मेरे पास ये फॉर्मूला है बेटा, डेल्टा एल इज अल्फा L0 डेल्टा थीटा. इसके दो इंटरप्रिटेशन. मान लो आपने डेल्टा एल को कांस्टेंट रखा, देन L0 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा. लेकिन मान लो आपने L को कांस्टेंट रखा, दो रॉड का लेंथ कांस्टेंट रखा, स्टील रॉड और कॉपर रॉड दोनों 10 सेंटीमीटर थे जब मैंने शुरू किया था, राइट? देन डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा. एकदम ध्यान से देखो, इसमें कंपल्सरीली डेल्टा थीटा तो मैं कांस्टेंट रख ही रहा हूं दोनों कंडीशन में. मतलब ये तो बेटा फिक्स ही है, उन्होंने बोला एट ऑल टेम्परेचर. अब मेरे पास 3 लोग हैं, डेल्टा एल, अल्फा एंड L0. If they talk about change in length, then it is directly proportional to alpha. जिसका अल्फा ज्यादा उसमें चेंज ज्यादा. But if they talk about only length, then it is inversely proportional to alpha. जिसका अल्फा ज्यादा उसका लेंथ कम. I repeat, एक L है और एक डेल्टा L है. Be careful please. ये दोनों का रिलेशन क्या है बेटा? डायरेक्ट, राइट? वो टाइम पे आपको L0 कांस्टेंट, व्हेन यू वांट टू स्टडी रिलेशन बिटवीन टू, द थर्ड वन शुड बी कांस्टेंट. मेरे पास टोटली 4 लोग हैं, डेल्टा एल, अल्फा, L0, डेल्टा थीटा. इसमें डेल्टा थीटा तो पक्का कांस्टेंट रखा है. इज इट एग्जैक्टली लाइक PV इक्वल टू RT?
इसमें बेटा R तो मैंने पक्का कांस्टेंट रखा है, अब मेरे पास 3 लोग हैं, तो जब मुझे 2 को स्टडी करना है मुझे तीसरा कांस्टेंट रखना है, राइट? 4 लोग हैं ना, 1 2 3 4, इसमें से ये पक्का कांस्टेंट है लाइक R, राइट? तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा L एंड अल्फा? Directly proportional. Provided L0 is constant. And what is the relation between alpha and L0? समझा एकदम अच्छे से। पहले बेटा इतना पार्ट कॉपी करो 0th पेज पे, या तो एक काम करो ना, ये एक्सरसाइज एक्सपेंशन इन सॉलिड्स का है, ये जो चल रहा है अभी, एट द बॉटम ऑफ दिस पेज ऐड कर दो। योर विश इफ यू वांट टू ऐड दिस ऑन द फर्स्ट पेज, या तो एट द बॉटम ऑफ दिस पेज, योर विश। आई एम वेटिंग। Will you please be a little fast in copying? कंटिन्यू करो। अभी सोच के बोलना बेटा, हाँ अभी सोच के बोलना। आपके पास ये फॉर्मूला है अभी, आपके पास ये फॉर्मूला है अभी। एज पर द क्वेश्चन कौन सा वाला यूज होने वाला है, लेफ्ट की राइट? सॉरी लेफ्ट, यस यस, बिकॉज डेल्टा एल कांस्टेंट बोला है उन्होंने। डेल्टा एल इज 5 सेंटीमीटर कांस्टेंट ऑलवेज इन दिस एमसीक्यू, मतलब डेल्टा एल कांस्टेंट बोला है, डेल्टा थीटा भी कांस्टेंट बोला है। सो ये मैंने जनरल एक्सप्लेनेशन लिखवाया जो आपने ऐड किया, ओके? कैन आई से इन दिस एमसीक्यू डेल्टा एल इज अल्फा L0 डेल्टा थीटा में ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, हाँ ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, बराबर? इसका मतलब द प्रोडक्ट अल्फा L0 शुड रिमेन कांस्टेंट, इसका मतलब अल्फा 1 L01 शुड मैच विथ अल्फा 2 L02। अब ये मैंने L01 L02 इसलिए लिखा है क्योंकि उन्होंने मुझे स्टार्टिंग लेंस पूछा है। मैं खाली L1 L2 लिखूं तो भी चलेगा, यस और नो? व्हाट इज अल्फा 1? चेक करो, दे मस्ट हैव गिवन स्टील का अल्फा एंड कॉपर का अल्फा, प्लीज हेल्प मी। स्टील का अल्फा, कैन आई राइट दिस एज 11 into 10 raised to minus 6? एक ही बात है ना? So this is 17 into 10 raised to minus 6, बराबर? So what is alpha 1? 11 into 10 raised to minus 6. What is L01? X plus 5. What is alpha 2? 17 into 10 raised to minus 6. What is this? X. एकदम कॉमन सेंस क्या अप्लाई करने का मालूम है? 11 और 17 में ज्यादा कौन है? 17। तो उसके साथ कम वाला नंबर आना चाहिए। 11 और 17 में कम कौन है? तो उसके साथ ज्यादा वाला नंबर है, बिकॉज देन ओनली प्रोडक्ट कैन रिमेन कांस्टेंट। अगर आपने ये 17 के साथ x plus 5 लिया और 11 के साथ x लिया, आपका x का आंसर नेगेटिव आएगा, और x नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, बिकॉज हु इज x? लेंथ। हाउ कैन द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट बी नेगेटिव? तो बाय चांस आपका x का आंसर नेगेटिव आया तो आपको एक हिंट मिलता है कि नो, यू आर रॉन्ग इन द सिलेक्शन ऑफ द सिंबल्स, यू आर रॉन्ग। सो हियर यू डोंट हैव टू वरी, ओके? चलो सॉल्व करो। 10 raised to minus 6, 10 raised to minus 6 गया, so this gives me 11x plus 55 is equal to 17x. That means 6x is equal to 55. That means x is equal to 55 upon 6. 9 6 are 54, 1 0, 6 1 are 6, 4 0, 6 6 are 36, 6 0, 6 6 6 6, so 7. x का आंसर आ गया बेटा 9.17, राइट? तो x plus 5 कितना हुआ? Obviously 14.17. 9.17 किसके लिए? कॉपर के लिए कि स्टील के लिए? कॉपर, बराबर? दिस इज फॉर कॉपर एंड दिस इज फॉर स्टील।
क्वेश्चन में पहले कौन सा वर्ड था? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए 14.17 कॉमा 9.17. तो आंसर इज बॉम्बे. पीछे की रॉन्ग दिया, पीछे ये दिया. अब सुनो 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 बेटा सुनो, ये एक क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझा. रीजन में इसके बाद में 4 क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ. एक 7th है, एक 21st है, एक 8th है और एक 10th. अब इसमें 7th और 21 तो क्लास वर्क ही है, तो आप लोग अब भी कर लेंगे. राइट नाउ हाउ टू सॉल्व 5th क्वेश्चन इन 5 seconds. लॉजिकल थिंकिंग. सीओडी हो नहीं सकता, सीओडी हो नहीं सकता क्योंकि उनका डिफरेंस 6 है. बाकी बचा ए एंड बी. अब इसमें सुपर सिंपल लॉजिक ये है बेटा कि जिसका अल्फा ज्यादा उसका लेंथ कम, बिकॉज ये प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना चाहिए, और जिसका अल्फा कम उसका लेंथ ज्यादा. समझा? वेट प्लीज बिफोर यू कॉपी दिस क्वेश्चन, प्लीज वेट. चेक 7th क्वेश्चन हो गया आपका. आप ओरली आंसर कर सकते हो. Should it be Bombay? Alpha 1 L1 is alpha 2 L2. तो 7th का आंसर हो गया बेटा बॉम्बे. उसमें लिखो सेम एस 5. अभी काम करो ना, 5th क्वेश्चन में ये लिखो बेटा, सॉल्व असाइनमेंट टू 7, सॉल्व असाइनमेंट टू 21, सॉल्व प्रैक्टिस पेपर टू 8 एंड सॉल्व प्रैक्टिस पेपर टू 10. बाद में ये चारों क्वेश्चंस पे जाओ और बोलो सेम एस 5 असाइनमेंट टू. दिस इज सुपर फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर्स. मैं अभी से क्वेश्चन लिख कर देता हूँ. एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा एट डीसीटी में और एक क्वेश्चन पूछूंगा संडे एग्जाम में पक्का. एक क्वेश्चन अभी से लिख करता हूँ जो आएंगे, लेकिन मैं ऑप्शंस इतने क्यूट नहीं पूछूंगा. मैं ऑप्शंस इतने क्यूट नहीं पूछूंगा जिसमें तुम लोग शॉर्टकट मार सको. ओके चलो कॉपी दिस क्वेश्चन. एकदम परफेक्ट सब कुछ आना चाहिए. एकदम टेढ़ा आया. ऐसे तो पूछा मैंने तुझे, तो पीछे किसी को दे देते. ना मेरा YouTube का फोटो है. मेरे YouTube का जो चैनल है ना उस पर बताया तो दिस इज प्रोफेसर नाइन, तो उसमें मैंने ऐसा फोटो.
Are you done? अच्छा प्लीज लेट मी नो, ये सबको मालूम है? किसको नहीं मालूम है? सबको मालूम है? If A upon B is C upon D, then B upon A is D upon C is called invertendo. By chance अगर ये किसी को नहीं मालूम है तो ये मैं बोर्ड पे रखूंगा, कॉपी कर लेना. Thereafter मैंने ये दोनों को इंटरचेंज किया, ये that is called alternando, right? Then this is A plus B upon B, componendo. Next one dividendo. Last one componendo and dividendo. Right? By chance अगर किसी को ये नहीं मालूम है तो ये एकदम फर्स्ट पेज पे बाद में कॉपी कर लेना. हाँ, wait please. Are we done with 7th question therefore? Yes. Check करो please. Answer should be Bombay. Right? Now I am taking you on to straight away 21st question. Because assignment की questions आप लोगों को मेरे साथ में करना है ना क्लास में. Are we on 21st question? Okay. Language used is nice over there. Language used is nice over there. Stay there. Right? I will solve this question for you, then you will copy. Again, favorite of the examiners. Again, favorite of the examiners. Have they given you aluminium rod and steel rod? Right? Suppose मैं aluminium rod को rod number 1 बोलता हूँ और steel rod को rod number 2 बोलता हूँ. Right? तो इसकी लेंथ को उन्होंने L1 बोला है और इसकी लेंथ को इन्होंने L2 बोला है. जिसको अल्फा 1 और अल्फा 2 बोलना चाहिए था. Just to make it little complicated, they have called this as alpha A and this is alpha B. That's it. Right? आप लोगों को ढूंढना है L1 upon L1 plus L2. L1 upon L1 plus L2. शुरू करो. Do I know delta L is equal to alpha L0 delta theta? ये सब में भी बेटा सेम क्या है, उन्होंने ये दोनों को कांस्टेंट रखा है ये सब में. ओके, इसका मतलब alpha L0 this product should be constant. So officially I should write alpha 1 L1 as alpha 2 L2. But उन्होंने जानबूझ के सिंबल अलग यूज किया है. So can I say alpha A L1 is alpha B L2? Now very important thing. मेरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन उसमें who is alone? बराबर. तो जो alone है ना, alone उसको डिनोमिनेटर में लाने का, डिनोमिनेटर में. So can I say L1 में डिनोमिनेटर में लाया, मतलब मुझे L2 ऊपर लाना है. Right? Should it be alpha A upon alpha B? Yes. Yes or no? Yes. As per this मुझे componendo यूज करना चाहिए. So using componendo, what will I get? Can I say L2 plus L1 upon L1 is equal to alpha A plus alpha B upon alpha B? And now you use invertendo. Now you use right? So this is L1 upon L1 plus L2 is alpha B upon alpha A plus alpha B. Yes or no? Yes. ये आपका आंसर हो गया. Please let me know the option. C. समझा? Yes. Sure? Yes. Now copy. I'm waiting. So we are done with 1 to 5. We are done with 7th and we are done with 21st.
सब क्वेश्चन बेटा घर पे जाकर वापस प्रैक्टिस करना. राइट नाउ यू आर यूजिंग माय ब्रेन, यू आर नॉट यूजिंग योर ब्रेन. जब तक खुद से नहीं करोगे ना कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा. आज का आज जाके सब वापस करो. इनफैक्ट दिस इज द होमवर्क फॉर यू. ऑल दिस क्वेश्चंस वंस ऑन लूज शीट्स. तुम लोग रॉन्ग जाओगे मुझे चलेगा, नो प्रॉब्लम, राइट. लेकिन कॉपी करके मत करना प्लीज. चाहिए तो ये सारे सोल्यूशन एक बार गो थ्रू करो, रिवाइज करो, चेक करो क्या क्या किया था, टेक्निक यूज, बाद में कोशिश करो. बिकॉज इफ यू नो दिस देन ओनली यू बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ प्रैक्टिस पेपर 2 व्हिच आई एम गोइंग टू गिव यू. तुझे बेटा तेरे क्वेश्चन में L1 चाहिए, बराबर. अभी तो L1 ऊपर लेगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट. सपोज तूने L1 ऊपर लिया था तो L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू अल्फा ए अपॉन अल्फा बी. अब अगर मैं इधर कॉम्पोनेंटो यूज करता हूं तो L1 प्लस L2 अपॉन L2 आएगा, और मुझे इधर L2 नहीं चाहिए, इसलिए मैंने पहले इन्वर्ट एंडो किया फिर कॉम्पोनेंटो लिया. उसका क्वेश्चन क्या था कि सर आपने L1 नीचे क्यों लिया. अगर बेटा मैं L2 नीचे लेता तो मैं कॉम्पोनेंटो या तो डिविडेंडो यूज करता तो डिनोमिनेटर में L2 आता. सर फिर पहले इन्वर्टेंडो करने के हाँ हाँ 100% चलेगा, वो भी चलेगा. अगर तूने ये लिया ना बेटा तो भी चलेगा. ऐसा एग्जाम के टाइम पे याद नहीं होगा ये क्यों लेना था. तूने मान लिया L1 अपॉन L2 लिया. अभी तुझे पता है जब तू कॉम्पोनेंटो लेगी तो इट विल बी L1 प्लस L2 अपॉन L2 इज अल्फा ए प्लस अल्फा बी अपॉन अल्फा बी. लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए ना, मुझे इधर L1 चाहिए, तो इसलिए मैंने पहले इन्वर्ट एंडो किया फिर कॉम्पोनेंटो लिया, वो भी चलेगा. जरूरी नहीं कि एग्जाम के टाइम पे ये याद आएगा कि ही वाज अलोन, दैट इज ओके. हाँ ऑब्वियसली. हाँ अच्छा ये रॉन्ग है. हाँ करेक्ट करेक्ट, सॉरी, थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी, ये रॉन्ग था, राइट. लास्ट 2 क्वेश्चंस, concentrate. Again they are also nice ones. Are you on question number 8? Very nice, very nice. Important mark करो बेटा. Are you on question number 8? Very nice. इसमें लिख के रखो सॉल्व प्रैक्टिस पेपर 2 का क्वेश्चन 7. इसमें लिख के रखो सॉल्व प्रैक्टिस पेपर 2 का 7th क्वेश्चन. अब एकदम ध्यान से सुनो, डोंट स्टार्ट विथ मी प्लीज. दे हैव गिवन मी 2 रॉड्स. पहले रॉड का लेंथ L है और अल्फा अल्फा है. दूसरा रॉड का अल्फा ट्वाइस अल्फा है, मतलब वो मटेरियल अलग होगा, है ना. उसका अल्फा सेम होता तो ही मैं बोल सकता था कि मटेरियल सेम है. दूसरे रॉड का लेंथ डबल है और अल्फा भी डबल है. इसका मतलब व्हाट इज द डेटा अवेलेबल टू मी. डेटा 1 लेंथ इज L, L1 is L, alpha 1 is alpha. Data 2 L2 is twice L and alpha 2 is twice alpha. अब ये 2 रॉड को आप एंड टू एंड कनेक्ट कर रहे हो. व्हाट डू आई मीन बाय दैट. कॉन्सेंट्रेट प्लीज, कॉन्सेंट्रेट प्लीज. ये मेरे पास एक रॉड है. हाँ ये पार्ट मैं हाइड कर देता हूं ताकि आपको लगे कि एक ही रॉड है. ये पार्ट मैंने हाइड किया और ये दूसरा रॉड है, राइट. डू यू एग्री विथ मी. इसका लेंथ अगर L है तो इसका लेंथ ट्वाइस L है. कैन यू सी दैट देयर मटेरियल्स आर डिफरेंट. ये ब्लू है, ये ब्लैक है. तो रॉड नंबर 1 इज दिस एंड रॉड नंबर 2 इज दिस. अभी समझा. अभी इनको मैं एंड टू एंड कनेक्ट कर रहा हूं, मतलब ऐसे. दिस इज कॉल्ड कंबाइंड रॉड और कंपोजिट रॉड. इट इज कॉल्ड कंबाइंड रॉड और कंपोजिट रॉड. तो बेटा मेरा नया डायग्राम कैसा बनेगा. मेरा नया डायग्राम ऐसा बनेगा. सोचो मेरा नया डायग्राम ऐसा बनेगा. सोचो yes or no. Are they joined end to end? So this is called combined rod. This is rod 1, this is rod 2 and this is combined rod or composite rod. This is called combined rod और composite rod. समझा. तो इसका लेंथ कितना हो गया. Can I say length of composite rod is L1 plus L2 which is 3L of course. तो इसका अल्फा कितना ये पूछा है. अल्फा सी का मतलब अल्फा ऑफ कंबाइंड रॉड. कॉमन सेंस अप्लाई करो बेटा, कॉमन सेंस.
इसका एक्सटेंशन होगा डेल्टा L1, इसका एक्सटेंशन होगा डेल्टा L2, तो फिर इसका एक्सटेंशन क्या होगा डेल्टा LC. Won't it be delta L1 and delta L2? सोचो, ये रॉड का एक्सपांशन प्लस ये रॉड का एक्सपांशन इज ये रॉड का एक्सपांशन, क्योंकि ये भी एक्सपांड होने वाला है, ये भी एक्सपांड होने वाला है. समझा कि वापस बोलूं? बस बेटा यही पार्ट मेन था. अप्लाई कॉमन सेंस. ये दोनों का टोटल विल बी इक्वल टू दिस. Yes. Combined extension of these two will be extension of the rod. So can I say delta L1 plus delta L2 is delta LC? Now what is delta L? Alpha L0 delta theta plus alpha L0 delta theta is equal to alpha L0 delta theta. लेकिन लिखूंगा कैसे मैं? Alpha 1 L1 delta theta, alpha 2 L2 delta theta, alpha C LC delta theta. रॉड 1 के लिए सब कुछ 1 लिखा मैंने, रॉड 2 के लिए सब कुछ 2 लिखा, रॉड कंबाइन के लिए सब कुछ C लिखा. राइट? डेल्टा थीटा गया, डेल्टा थीटा गया, डेल्टा थीटा गया. सो व्हाट इज अल्फा C? Is it alpha 1 L1 plus alpha 2 L2 upon LC? बेटा प्रैक्टिस पेपर 2 के 7th क्वेश्चन पे जाओ. प्रैक्टिस पेपर 2 के 7th क्वेश्चन पे जाओ. पढ़ो आराम से और आंसर डिसाइड करो. आंसर बोर्ड पे है. अल्फा 1 L1 प्लस अल्फा 2 L2 अपॉन L1 प्लस L2, जैसे हम लोग एवरेज निकालते हैं. बराबर? अभी उधर ही हो ना क्वेश्चन 7 पे, उधर लिख के रखो. For detailed explanation refer. For detailed explanation refer. Assignment 2 question 8. मेरा एक स्टेप बाकी है ये क्वेश्चन में भी, क्योंकि अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ. Come on students. What is alpha 1? Alpha. What is L1? L. What is alpha 2? Twice alpha. What is L2? Twice L. What is L1 plus L2? L plus twice L. That means my numerator is 5 alpha L and my denominator is 3L. L gaya is my answer 5/3 of alpha. So alpha of combined rod is 5/3 of alpha. समझा? Very beautiful question. Very beautiful. I am waiting. Copy. एक काम करूं क्या, 9th क्वेश्चन भी साथ साथ में कर लूं? तो दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. फिर मैं होमवर्क अनाउंस कर देता हूं, एंड देन आफ्टर एवरीथिंग इज ऑन द बोर्ड, यू कैन कॉपी. लेट मी जस्ट फिनिश माय वर्क. आर वी ऑन 9th क्वेश्चन? अप्लाई कॉमन सेंस. लेंथ इज अ लेंथ, ब्रेड्थ इज अ लेंथ, हाइट इज अ लेंथ, थिकनेस इज अ लेंथ, रेडियस इज अ लेंथ, डायमीटर इज अ लेंथ, सर्कमफरेंस इज अ लेंथ. ये सबके सब लेंथ है कि नहीं? सुनो वापिस. लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, थिकनेस, रेडियस, डायमीटर, सर्कमफरेंस, ऑल आर लेंथ्स. तो ये सब में सिर्फ अल्फा का कॉन्सेप्ट यूज होगा. Why I am insisting so much on this? Read question number 9 please. Read the last line. Have they asked you change in circumference? Right? तो obviously circumference also is a length. तो उसके ऑप्शन में सब जगह पे अल्फा ही आना चाहिए. Right? एक काम करते हैं, before I start solving this question on the board, at the bottom of page number 47 you write one note. At the bottom of page number 47 you write one note. Length, breadth, height, thickness, radius, diameter and circumference all mean length. बराबर ना? all mean length. ये पार्ट समझा बेटा? ये सबका मतलब लेंथ ही है ना? Length is a length, breadth is a length, height is a length, thickness is a length, radius is a length, and so on. Therefore, which concept should be used? Concept of alpha must be used. Concept of
alpha must be used. Now read 9th question, please. As they say, radius of a ring is r, and its coefficient is alpha. If the temperature of the ring is increased by theta, इसका मतलब बेटा डेल्टा थीटा कोई ही थीटा दे दिया है. सपोज स्टार्टिंग टेम्परेचर 0 है तो न्यू टेम्परेचर थीटा है. स्टार्टिंग टेम्परेचर 5 है तो न्यू टेम्परेचर थीटा प्लस 5 है. स्टार्टिंग टेम्परेचर 25 है तो न्यू टेम्परेचर थीटा प्लस 25. तो अल्टीमेटली डिफरेंस विल बी थीटा. सो क्वेश्चन नंबर 9 में रेडियस क्या दिया है? रेडियस r. कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या दिया है? अल्फा. टेम्परेचर डिफरेंस क्या दिया है? थीटा. पूछा क्या है? सरकमफरेंस. वो भी चेंज इन सरकमफरेंस पूछा है. इंक्रीज या तो चेंज ऐसा कुछ तो बोला होगा. अंडरलाइन द वर्ड इंक्रीज इन सरकमफरेंस. अब ध्यान से सुनो कैसे सॉल्व करना. वेरी इजी. पूछने का स्टाइल अच्छा है, क्वेश्चन टफ नहीं है. डू यू एग्री विथ मी? डेल्टा एल इज अल्फा, L0 डेल्टा थीटा. इसका मतलब डेल्टा आर इज अल्फा R0 डेल्टा थीटा. यहां तक समझा? इसका मतलब डेल्टा आर इज अल्फा R0 डेल्टा थीटा. मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2 पाई. व्हाई सो? वेरी गुड, वेरी गुड. लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया? सरकमफरेंस की चेंज इन सरकमफरेंस. वही पूछा था बराबर. सो डेल्टा सी इज इक्वल टू अल्फा एज इट इज. R0 उन्होंने R बोला इसलिए मैं लिख रहा हूं. डेल्टा थीटा उन्होंने थीटा बोला इसलिए मैं लिख रहा हूं. 2 पाई एज इट इज. दिस इज माय आंसर. समझा? श्योर? सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर था बॉम्बे. क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है बॉम्बे. अगेन चेक करो. 8 का सी है. ओके ओके. अभी आज का लास्ट हिंट. बिकॉज व्हेन यू सॉल्व प्रैक्टिस पेपर सम्स यू विल नीड दिस. नेक्स्ट टाइम का होमवर्क is assignment 2, questions 1 to 5, 7 to 9 and 21 once on loose sheets. And practice paper 2 all except let me check. I will have to check this. Are you on practice paper 2, please? All except 13th, 26th and 30. अब बेटा छोटा सा कमेंट ध्यान से सुनो. अगर रेलवे लाइन का क्वेश्चन आया, रेलवे लाइन, यू कैन बी ऑन प्रैक्टिस पेपर 2 फॉर द टाइम बिंग. आर यू ऑन प्रैक्टिस पेपर 2 फॉर द टाइम बिंग? बेटा रेलवे लाइन के क्वेश्चन में गैप का मतलब क्या होना चाहिए? रेलवे लाइन का कोई भी क्वेश्चन आया तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैप? डेल्टा एल. इट इज नॉट एल. दो रेलवे ट्रैक के बीच का जो गैप होता है ना, गैप. अगर ये एक रेलवे ट्रैक है और ये दूसरा रेलवे ट्रैक है तो बेटा रेलवे ट्रैक की लेंथ इज L0 बट गैप की लेंथ इज डेल्टा एल. ये पार्ट समझा? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये फॉर्मूला यूज होने वाला है उसमें. दूसरा एक इंपॉर्टेंट कमेंट सुनो. इफ आई से द लेंथ इज इंक्रीजिंग बाय x%, if I say the length is increasing by x%, ये दूसरा और लास्ट कमेंट है आज का. if length increases by x%, मतलब मैंने क्या दिया है? डेल्टा एल नहीं दिया है मैंने, डेल्टा एल अपॉन एल दिया है. बिकॉज व्हेन आई से इट इज इंक्रीमेंट इन समथिंग तो विथ रिस्पेक्ट टू तो होना चाहिए ना. मैं बोल रहा हूं कि रॉड का लेंथ 4% बढ़ रहा है
तो 4% किसका? 100 सेंटीमीटर का, 50 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का। जब आप लोग बोलते हो सर मुझे 72 मार्क्स मिला, तो मतलब सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा ना बेटा, आउट ऑफ हाउ मच, राइट? अगर आपका नीट का पेपर है तो आउट ऑफ 180, अगर HSC का पेपर है तो आउट ऑफ 100, मतलब आप बोलोगे ना, मैं पूछूंगा ना आउट ऑफ हाउ मच। तो जब भी मैं ये बोलता हूँ कि लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय x%, मतलब मैंने डेल्टा L अपॉन L x% दिया है, मतलब x अपॉन 100 दिया है। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, ऐसे सब में ये मत सोचना कि सर डेटा इज इनकम्प्लीट, L0 दिया ही नहीं है। L0 दिया है लेकिन वो डेल्टा L के साथ चला गया, इसलिए दिख नहीं रहा। So when I say volume is changing by 0.12%, what does this mean? When I am saying volume is changing by 0.12%, ये करेक्ट है कि इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट है, अपॉन V0 लिखना चाहिए बेटा। Volume is changing by 0.12% means what? With respect to original volume. जैसे इधर with respect to original length था, yes or no? तो ये पार्ट बेटा खास कॉपी करके रखना, क्योंकि इसके ऊपर भी पॉपुलर क्वेश्चन है। You can go back to page 0. You can copy this and this. वापिस एक बार पूछता हूँ, ये समझा? When I say रेलवे ट्रैक वाला एग्जाम, दो ट्रैक के बीच का जो गैप है, चल बेटा एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ये एक ट्रैक है, ये दूसरा ट्रैक है, और ये तीसरा ट्रैक है, ओके? अब मैं मिडल ट्रैक पे फोकस कर रहा हूँ, मिडल वाले। When the temperature is increasing in summer, ये ट्रैक को ऐसे भी एक्सपांड होना है, ऐसे भी एक्सपांड होना है। तो तू इसके मिड पॉइंट तक जा और इसके मिड पॉइंट तक जा, तो ये आधा इंक्रीमेंट हुआ और ये भी आधा इंक्रीमेंट हुआ। अभी तू यहां से हाफ ले और यहां से हाफ ले, या तो एक ये पूरा ले ले, एक ही बात है। It is something like this, you need 1000 rupees. पापा gives you 500, मम्मा gives you 100. अबे उनका इंटरनल मैटर है, कोई भी एक जन मिलके आपको 1000 दे देता है, आपका काम हो गया। ये सुनो, सो आधा गैप इधर से गिनो और आधा गैप इधर से गिनो, या तो फिर पूरा गैप या तो ये गिनो या तो ये गिनो, बिकॉज इट इज अ यूनिफॉर्म मेटल, नो? तो एक्सपेंशन अलग अलग नहीं हो सकते। अगर रेलवे ट्रैक्स स्टील के है तो थ्रू आउट स्टील के है। लॉजिक समझा? ये दोनों कमेंट समझा बेटा? सुपर श्योर? होमवर्क समझा? ये बेटा फेयर बुक में करना प्लीज, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आपके बुक में वर्किंग स्पेस प्रिंट नहीं हुआ है, ये बुक में नेक्स्ट बुक में वापस ध्यान रखा है, राइट? तो ये फेयर बुक में करना प्लीज, ओके? और ये लूज शीट्स पे करना। ये फेयर बुक में ये सबमिट नहीं करना है, बिकॉज इसके मैं डाउट्स डिस्कस करना शुरू करूंगा थर्सडे को, और ये लूज शीट्स पे। होमवर्क वेरी क्लियर? माइंड यू वेडनेसडे DCT 10 MCQs, थर्सडे DCT 10 MCQs। संडे एग्जाम में मैं जो थर्सडे तक पढ़ाऊंगा वहां तक आएगा, मतलब असाइनमेंट 1, प्रैक्टिस पेपर 1, प्रैक्टिस पेपर 2 और असाइनमेंट 2 में जितना करवाया उतना। So we stop here for the day.